Breaking news coming in, and this is of the Aam Aadmi Party with the Enforcement Directorate that have in fact taken a legal course of action, a plea that has been filed in the Supreme Court, and that case has been taken up in a Delhi court today. This is against the summons. This is with Delhi's Chief Minister there not showing up for the summons. Do remember, he has been summoned by the Enforcement Directorate 5 times over. So they've taken up that petition by the Enforcement Directorate against Arvind Kejriwal for not complying to the summons issued to him. The court will be giving its decision at about 4 o'clock in the evening. The move comes after Arvind Kejriwal has been missing summons since November. His last summon was for the 2nd of February this month, but of course he skipped that summon as well, saying that this was illegal, and repeated notices were an attempt by the agency, that's the Enforcement Directorate, to arrest. Do remember, the Aam Aadmi Party has been claiming that all this is being done to arrest the Chief Minister, and the Aam Aadmi Party leaders have gone on to say that they will have Arvind Kejriwal continue as the Chief Minister even from jail if that is the situation. Let's just listen into what Atishi had to say. पहले ये तय होता है कि किसको जेल में डालना है, उसके बाद डिसाइड होता है कि किस केस के तहत डालना है। और अगर कल का पंचनामा देखें तो अब तो किसी केस, किसी इन्वेस्टिगेशन का दिखावा भी केंद्र सरकार की ईडी ने खत्म कर दिया। तो ये बिल्कुल साफ है कि ये कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को कुचलने की एक साजिश है। We have my colleague Sharad joining us. Sharad, we just heard Atishi saying that this is a move only to squash the Chief Minister. You know, something that the Aam Aadmi Party has been going on saying that all this is basically to arrest Chief Minister Arvind Kejriwal. Now, the Enforcement Directorate has, that case has been taken up in the Delhi court. This is against Arvind Kejriwal for skipping summons 5 times over. A decision is expected this evening. What time can that decision come out, and what does this really mean for the Chief Minister going forward? देखिए, हुआ यह था कि 5 समन ईडी भेज चुकी थी और अरविंद केजरीवाल ने उन समन्स को इलीगल बताया था, गैर कानूनी बताया था और पॉलिटिकली मोटिवेटेड बताया था, और इसका हवाला देकर अरविंद केजरीवाल ने ईडी के सामने जाने से मना कर दिया था। जिसके बाद ईडी पिछले हफ्ते कोर्ट गई थी और कोर्ट ने आज 7 फरवरी की डेट रखी थी कि 7 फरवरी को इस जो कंप्लेंट ईडी ने दी है उसकी सुनवाई करेंगे। तो आज जब कोर्ट में सुनवाई हुई तो ईडी ने बताया कि उसको जो कहना था इस मामले में वो कह चुके हैं, रिटर्न सबमिशन वो दे चुके हैं कि इस मामले के अंदर, यानी कि कथित शराब घोटाला जो मामला है, इसमें वो मुख्यमंत्री से पूछताछ करना चाहती है और वो अपीयर नहीं हो रहे हैं ईडी में, तो जो उन्होंने दिया है उसको ही मान लिया जाए। तो बहुत लंबी सुनवाई नहीं हुई, कुछ मिनटों की ही सुनवाई हुई और कोर्ट ने आज शाम 4 बजे के लिए ऑर्डर रिजर्व कर लिया है। ऑर्डर क्या हो सकता है, इसको लेके अभी अटकलें लग रही हैं। यह भी संभव है कि कोर्ट मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नोटिस करे कि आप आइए और ईडी की शिकायत है उस पर आप अपना पक्ष रखिए। यह भी हो सकता है कि कोर्ट जो है वो ये कह दे कि आप सीधे ही ईडी की जो पूछताछ है उसको, इन्वेस्टिगेशन को आप ज्वाइन कीजिए, या ये भी हो सकता है कि ईडी की जो शिकायत है उसको वो खारिज कर दे। तो तीनों ही चीजें हैं, इंतजार करना होगा कि शाम 4 बजे कोर्ट इस पर अपना क्या रुख अपनाता है, और जो कोर्ट का रुख होगा उसके बाद आगे का पता चलेगा कि आगे कौन कोर्ट जाएगा। क्या ईडी कोर्ट जाएगी क्योंकि उसको संतोषजनक ऑर्डर कोर्ट से नहीं मिल पाया, या अरविंद केजरीवाल कोर्ट जाएंगे क्योंकि उनको कोर्ट से संतोषजनक या संतुष्ट करने वाला सेटिस्फैक्टरी ऑर्डर नहीं मिल पाया है। तो शाम 4 बजे ये ऑर्डर आएगा। Right. Sharad, of course, we are waiting and all eyes as far as that order is concerned. Do remember, the Enforcement Directorate has taken up that petition in a Delhi court regarding Arvind Kejriwal skipping those summons. Do remember, he was asked to come before the Enforcement Directorate officials back in November. He's been skipping summons since then. His last summon was for the 2nd of February. So 5 summons have been skipped by the Chief Minister. We also have Mukesh joining us. Mukesh, we've seen in the case of the
Chief Minister of Jharkhand, Hemant Soren, who skipped the summons 7 to 8 times. Finally, he was questioned, and by the second round of questioning, he was arrested. Now, the Aam Aadmi Party has claimed that all this is happening to arrest the Chief Minister. Arvind Kejriwal has claimed that he's done nothing wrong. He's been calling this a witch hunt. He's been saying it's illegal, which is why he's been skipping the summons. But now, with the Enforcement Directorate moving court, what kind of options does Arvind Kejriwal have, and what could this mean for the Chief Minister? देखिए, अरविंद केजरीवाल बार बार ये कहते आए हैं कि जो ईडी के सम्मन है वो इलीगल हैं। ईडी ने कोर्ट में ये कहा है कि अगर सम्मन इलीगल हैं तो अरविंद केजरीवाल अपने बचाव में कोर्ट क्यों नहीं आए। तो ये सबमिशन जो ईडी है वो उसने कोर्ट में रखा है और ये भी कहा है कि बार बार सम्मन देने के बाद भी उनको 3 महीने के अंदर 5 सम्मन जारी हुए, लेकिन एक बार भी वो ईडी के सामने पेश नहीं हुए। बार बार वो पत्र लिखकर ये कहते हैं कि सम्मन इलीगल है, या सम्मन बीजेपी हेडक्वार्टर से जारी हो रहे हैं, या फिर जो सम्मन है वो पॉलिटिकल मोटिवेटेड हैं। लेकिन उनके पत्र आते हैं ईडी ऑफिस, लेकिन वो नहीं आते हैं। वो एक पब्लिक सर्वेंट हैं और पब्लिक सर्वेंट होने के बाद भी जो ईडी के सम्मन है उनका वो रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये जो सबमिशन है ईडी के वो कोर्ट में सबमिट हो गए हैं, यानी कि जो ईडी है उसने अपनी कोर्ट में बात रख दी है। तो जज ने कहा है कि अब 4 बजे वो इस पूरे मामले पर अपना ऑर्डर देगी। तो 4 बजे ये देखना होगा कि क्या कुछ ऑर्डर आता है, लेकिन ऐसा लगता है कि जो ईडी है जो ईडी की शिकायत है उस पर कोर्ट अरविंद केजरीवाल को नोटिस जारी कर सकता है, या फिर उनसे ये कह सकता है कि वो सीधे तौर पर ईडी के मुख्यालय में पेश हो, या फिर जो ईडी की याचिका है, जो उसकी शिकायत है उसको खारिज कर सकता है, जिसकी संभावना बहुत कम है क्योंकि ये मामला पीएमएलए का है। हालांकि अरविंद केजरीवाल अभी तक शराब घोटाले में आरोपी नहीं है और कहीं भी जो एफआईआर है उसमें उनका नाम नहीं है, लेकिन कई सारे ऐसे गवाह हैं जो आरोपी हैं जिनके स्टेटमेंट ईडी ने पीएमएलए के तहत रिकॉर्ड किए हैं, उसमें उनका नाम आया है। जो चार्जशीट पेश हुई हैं उनमें उनका नाम है, और ये भी जानकारी ईडी की चार्जशीट में है कि शराब घोटाले को लेकर जो एक मीटिंग हुई थी वो मीटिंग भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के यहाँ हुई थी और कई शराब कारोबारियों से अरविंद केजरीवाल ने बात की थी। तो उसी मामले में जो ईडी है वो अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करना चाहती है, लेकिन 5 बार सम्मन देने के बाद भी अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए हैं। अब देखना होगा कि जो 4 बजे जो है वो कोर्ट क्या कुछ फैसला करता है और क्या कुछ होने वाला है। अगर ये फैसला जो ईडी के पक्ष में आया तो निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ने वाली हैं। Right, Mukesh, we also saw in the case of Hemant Soren, the second round of questioning, he was given that window between the 29th of January to the 31st. And on the 29th itself, the ED officials had reached the national capital. They were here at his residence in New Delhi looking for him. They had even confiscated his car. They had questioned his driver. So that's the kind of tactics that the ED had adopted when it came to Jharkhand's Chief Minister. When it comes to the Delhi Chief Minister, he skipped the summon 5 times over. Now that they're trying to take a legal recourse, they have moved court in order to put pressure on the Chief Minister. We do know that he has been questioned by the CBI in the past. He's been maintaining that he's not an accused. They haven't specified if he's a witness or an accused in the case, and that why is he being called in for questioning in the Delhi liquor case. So Mukesh, isn't it up to the ED to kind of let Kejriwal know as to whether he is a witness or an accused in the case as far as the Delhi liquor scam is concerned? देखिए, यहाँ पर हमें यह भी देखना होगा कि जो अरविंद केजरीवाल है या फिर हेमंत सोरेन हो, दोनों का ही एक बड़ा राजनीतिक कद है और दोनों ही काफ़ी बड़े चेहरे हैं। इसीलिए ईडी सीधे तौर पर कोई कार्रवाई करने से बच रही थी। हेमंत सोरेन को भी ईडी ने 8 बार नोटिस जारी किया था और जब वो लगातार ईडी के सम्मन को इवेट कर रहे थे तब उनको अरेस्ट किया गया। यहाँ जो मामला अरविंद केजरीवाल का है उनका कद बहुत बड़ा है, एक बड़ा राजनीतिक चेहरा है, इसीलिए ईडी सीधे तौर पर कार्रवाई करने से बच रही है और इसीलिए ईडी जो है कोर्ट आई है ताकि कोर्ट के सहारे, कोर्ट के आदेश के बेसिस पर ईडी उन पर कार्रवाई कर पाए। हालांकि अभी तक ईडी ने यह साफ नहीं किया है कि वो इस केस में उनका क्या रोल है सही तरीके से और क्या आगे जाकर ईडी उनको इस केस में अरेस्ट करेगी या एक्यूज बनाएगी, इसको लेकर अभी कुछ साफ नहीं है। तो ये पूछताछ के बाद तय होगा कि वो विटनेस हैं या फिर इस केस में एक्यूज बनने वाले हैं, ये बाद में तय होगा। लेकिन फिलहाल जो ईडी है वो अरविंद केजरीवाल से सीधे टकराव से बच रही है, इसीलिए उसने कोर्ट का रास्ता अपनाया और कोर्ट के जरिए जो है कोर्ट में एक शिकायत दर्ज कराई और अब कोर्ट के आदेश के तहत वो आगे का जो एक्शन है, आगे की जो कार्रवाई है वो कोर्ट के आदेश के आधार पर तय करेगी। Thank you so much, Mukesh, for joining us with those details.